Now, I want to share one more thing. In India, there has been a culture of getting married to the in the same caste, right? Isn't it? That suppose Vineet wants to marry a girl who is of some other caste. Suppose Vineet wants to marry Nigerian. not Nigerian, someone from his class. Okay, uh, but his father is not allowing him to marry her. Why? Because according to his father, Vineet is doing समाज में नाक कटवाने वाली बात. Okay, so that's the situation in India. Now suppose Anisha wants to marry a guy, but his father is not allowing her to marry that particular guy. Why? Because according to Anisha's father also, it is a situation of naak katane wali baat. They want their children to get them married in the same caste as they are in, right? So in everyone's family this problem is there. Okay, और कितने सारे दिल टूटते हैं इस प्रॉब्लम के कारण. तो do you know why this problem? This is also an issue of social security, let me tell you. But do you know that why this problem is there? Why this rule was made that हमें अपने कास्ट में शादी करना है? Any idea? नहीं भैया. नहीं. और विनीत तुमको? अरे ये कास्ट सिस्टम के वजह से नीचा जात ऊपर जात होता था ना. नीचा जात में भी बहुत सारा जात होता है, लेकिन वो लोग एक दूसरे में नहीं करता है. नीचा जात में भी बहुत सारा होता है, लेकिन एक दूसरे में नहीं करता. जात क्योंकि मिक्स प्रोडक्ट निकलेगा इसीलिए. Yes, actually. भैया डिफाइन कैसे होता है कि उसका जात छोटा है या फिर बड़ा है? वो तो वही हुआ ना, जैसे क्या है कि अगर हम लोग देखा जाए तो जो लोग को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला है ना, वो लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला है, तो हमें आप ओबीसी घोषित करो और हमें रिजर्वेशन दो. फिर गवर्नमेंट उस पर काम करता है, इस पे इन्वेस्टिगेट करता है, लोकसभा में एक बिल पास होता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर जात को, ठीक है, घोषित किया जाता है कि वो ओबीसी होगा या नहीं होगा. अगर ओबीसी उसको मिल गया राइट, तो फिर ओबीसी कहलाया. ऐसे बहुत लोग हैं जो बाद में ओबीसी हुए हैं, पहले से ओबीसी नहीं थे. जैसे कि यादव, तुमने सुना होगा यादव. नाउ दिस यादव क्लैन, दिस इज द क्लैन जिसमें हम लोग का जो यदुवंशी है वो लोग बिलोंग करते हैं, यानी कृष्ण भगवान की क्लैन है यादव क्लैन. तो ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान की अगर क्लैन है तो वो छोटा जात कैसे हो सकता है, राइट? लेकिन ये लोग ओबीसी में आते हैं अभी. क्यों? क्योंकि बाद में क्या हुआ, यादव क्लैंस वेर डिप्राइव्ड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सो दे क्लेम्ड इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वी वांट टू बिकम अ रिजर्व कैटेगरी. तो उन्हें वो कैटेगरी मिला फिर यादव्स को. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन इट आल्सो. जो पार्टीज होती है जिन्हें लगता है कि यहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज्यादा है, मुझे वोट मिल सकता है, तो पॉलिटिशियन उस पे पीछे से बैकअप देते हैं कि हाँ हम लोग आपको ओबीसी कर देंगे, ये वो बहुत सारा लफड़ा इसमें लगा रहता है. सो अगर मैं बोलूं ओवरऑल तो दिस इज अ वेरी nowadays it is a curse for sure. समझे अनीशा? हाँ भैया. Now coming to my point कि why people used to marry in the same caste. So initially the caste system was not based on birth. Okay, the Britishers came and they presented the caste system as if it was based on birth. Okay, but caste system was not based on birth. If you go through our all our Hindus over here, no Muslims. Okay, so if you go into our Vedas, so you will find that the caste system is actually based on the type of occupation which you are doing. Okay, if someone is a priest, then he is Brahmin caste. If someone is fighting for the king, then he is a Kshatriya. Okay, it was not based on birth. But what used to happen at that time is there were no, there were no universities, there were no schools, there were no colleges. Like suppose Vineet. Okay, Vineet belongs from a businessman family, so he is a Vaishya by his caste. But suppose Vineet wants to become an engineer, then he can easily go to an engineering college and become an engineer. भैया वैश्य कौन सा कास्ट होता है?
क्या चीज? वैश्य कौन सा कास्ट होता है? businessman, those who are businessmen. Okay. Now, if suppose at that point of time, if there were no universities, there were no colleges, तो जो एजुकेशन का सोर्स था वो क्या था? लोग एजुकेटेड कहाँ से होते थे? लोगों को स्किल्स कहाँ से मिलता था? अभी तो स्किल्स अगर चाहिए तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में चले जाओ, किसी को कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस के कॉलेज में चले जाओ, किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले जाओ, कलकत्ता स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाओ, अलग अलग जगह है। किसी को अगर स्पेस में जाना है तो गुरुकुल। इसरो चले जाओ। तो पहले के टाइम पे अगर स्किल डेवलप करना होता था तो कहाँ जाते थे? गुरुकुल में तो वेदास पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में स्किल नहीं डेवलप करते थे। गुरुकुल में वेदास पढ़ाया जाता था, सिर्फ वेद का नॉलेज मिलता था सबको। जो स्किल है, जैसे कि किसी को अगर मूर्तिकार बनना है, किसी को अगर बिजनेसमैन बनना है, तो वो उसमें क्या एमबीए के कॉलेजेस थे? आईआईएम था उस समय कि आपको वहां पे एमबीए सिखाया जाएगा बिजनेस करने के लिए? नहीं। तक्षशिला था, तक्षशिला। तक्षशिला वाज वेरी लेट, तक्षशिला बहुत दिन बाद बना है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि जो स्किल मिलता था वो फैमिली से ही मिलता था, राइट? वो फैमिली से ही मिलता था। अब जैसे किसी को अगर तलवार चलाना है तो उसका पिता अगर तलवार चलाना जानता है तो अपने बच्चे को समझाता था कि तलवार कैसे चलाते हैं। हर बच्चा गुरुकुल नहीं जाता था, गुरुकुल सिर्फ राजा महाराज का बच्चा लोग जाता था। सो वो बच्चा तलवार चलाना सीख लेता था अपने फादर से। अब किसी के फादर को अगर रथ चलाना आता है तो उसका बच्चा रथ चलाना सीख लेता था, राइट? तो इससे क्या हुआ ना कि जो नॉलेज था वो जनरेशन बाय जनरेशन उसी क्लैन में जाते गए। ओके, अब क्या हुआ कि उस क्लैन का अगर सब लोग रथ चला रहा है तो उस क्लैन का जो अगला जनरेशन होगा वो भी रथ चलाएगा, क्योंकि उसका बाप उसको रथ चलाना सिखाएगा। तो इससे क्या होगा ना, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कि अच्छा ये लोग हैं जो रथ चलाते हैं, इनके अलावा इस कम्युनिटी के अलावा किसी को रथ चलाना नहीं आता। ये लोग हैं जो धनुष चलाते हैं, इस कम्युनिटी के अलावा किसी को धनुष चलाना नहीं आता। ये लोग हैं नेपोटिज्म। या नेपोटिज्म, एक्चुअली ये लोग हैं जो पंडित हैं, इनके अलावा किसी को पूजा कराना नहीं आता। तो इस तरह का कम्युनिटी बन गया। अब इन कम्युनिटी के जो हेड्स थे उन लोगों ने अपने बच्चों का शादी अपनी ही कम्युनिटी में करने को सोचा। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई रथ चलाने वाला कोई घोड़ा चलाने वाले के साथ शादी कर ले तो उसका बच्चा क्या चलाएगा? टांगा चलाएगा, घोड़ा और गाड़ी मिला देगा, ठीक है। तो अब समझो कोई धनुष चलाने वाला है, उसका शादी अगर किसी समझो किसी पुजारी से हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे? फिर उन लोग का जो बच्चा होगा वो मिक्स कल्चर का पैदा होगा। तो जो स्किल है ना, धनुष चलाने का स्किल, वो लीक हो जाएगा एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में चला जाएगा। और पुजारी होने का जो स्किल है वो भी लीक हो जाएगा, वो उस कम्युनिटी से इस कम्युनिटी में आ जाएगा। तो ये लीकेज ना हो, जहां लीकेज हुआ वहीं पे उनका जो अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वो लॉस हो जाएगा। नहीं तो पहले क्या था, किसी को भी रथ का जरूरत है तो उस कम्युनिटी के पास जाते थे, धनुष का जरूरत है उस कम्युनिटी के पास जाते थे। अगर मिक्स हो गया तो क्या होगा? मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाएगा परफेक्ट तो कंपटीशन, मोनोपोली पे अभी नहीं तो बचेगा। तो फिर भैया, क्या? तो अभी तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं लगता है। एग्जैक्टली तो उससे क्या हुआ ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कल्चर बन गया कि हम लोग, ये हुआ सोशल सिक्योरिटी मिला कि आपको इस काम का सिक्योरिटी, रथ चलाने वालों को रथ चलाने का सिक्योरिटी मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने उस पर मोनोपोली बनाया हुआ है। धनुष चलाने वालों को धनुष चलाने का सिक्योरिटी मिलेगा, यानी कि पूरे गांव में, पूरे शहर में जहां भी धनुष चलाने का बात होगा तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इस कम्युनिटी को मिलेगा। तो ये होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये कल्चर बन गया कि शादी दूसरे कम्युनिटी में नहीं करना, नहीं तो लीक हो जाएगा। वही कल्चर चलते हुए आ गए। और जैसे निखिल ने कहा कि अभी तो इसका कोई मायने नहीं रखता है, तो एक्चुअली अभी इसका कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि अभी ये बात तो नहीं है ना कि स्किल लूज हो जाएगा किसी का। तो अभी क्या है कि इंसान कल्चर जब बना लेता है तो उस कल्चर से इंसान निकलना नहीं चाहता है, ये बात है, क्योंकि जो थॉट मेंटेलिटी पुराना है। तो गवर्नमेंट का यहाँ काम है, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है लोगों को बेटर बनाना, क्योंकि एक कंट्री तब बेटर बनता है जब उसके पब्लिक बेटर बनते हैं, पब्लिक का जब सोच अच्छा होता है। पब्लिक अगर सोचेगा कि मंदिर यहीं बनाएंगे तो वही सोचते रह जाओ। अब पब्लिक अगर सोचेगा कि मेट्रो यहीं बनाएंगे, पब्लिक अगर सोचेगा कि 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, पब्लिक अगर सोचेगा कि सपोज अच्छा सा फ्लाईओवर बन पाएंगे,
तब कंट्री में वही चीज होगा। पब्लिक अगर सोचेगा कि हिंदू मुस्लिम में मारपीट करेंगे, पब्लिक अगर सोचेगा कि कश्मीर में सेना पे पत्थर फेंकेंगे, पब्लिक अगर सोचेगा कि सेना को गाली देंगे, तो वही सब होगा। जो अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्रूशियल रोल है। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रहा है तो पब्लिक भी अपने आप अच्छा काम करेंगे। गवर्नमेंट अगर देख रहा है कि गवर्नमेंट ही ये कर रहा है तो लोगों को भी लगेगा कि गवर्नमेंट के साथ साथ रहने में ही फायदा है, गवर्नमेंट जो कर रहा है वो करो, तो कंट्री का हाल ऐसा हो जाएगा जैसा हमारे कंट्री का है। तो एक आइडियल गवर्नमेंट का रोल है कि जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम देना है, ठीक है। जो अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पब्लिक के पैसों से पॉसिबल है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ क्रूशियल हो जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है कि पब्लिक का जो पैसा है, जो टैक्स है, उससे हम लोग क्या बनाए, उससे हम लोग मंदिर बनाए या उससे हम लोग कोई दूसरा चीज करें। ओके, तो समझो पब्लिक के पैसों से एक एयरपोर्ट बना, ठीक है, असम में बना है ना अभी एयरपोर्ट। तो पब्लिक के पैसे से अगर एयरपोर्ट बना तो उससे ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगा या एक मस्जिद बनने से ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, ये बताओ। मस्जिद, मंदिर, मंदिर। मस्जिद मंदिर से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एयरपोर्ट से कम मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मंदिर बने। नहीं बोलो, निखिल को बोलने दो। मंदिर बनेगा तो उसका आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, टूरिस्ट आना स्टार्ट होगा, तो जितना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग खुद एयरपोर्ट डेवलप कर देगा, होटल्स बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं डेवलप कर सकता है। एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्लेन चला सकता है, एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी वहां पे होटल्स बना सकते, वो सब पॉइंट सही है, लेकिन एयरपोर्ट मत बोलना। अब यहाँ पे मैं एयरपोर्ट को क्यों वजूद दे रहा हूँ, क्योंकि देखो एयरपोर्ट पे जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे लगता है मंदिर से ज्यादा वास्ट है। कैसे? कि पहला बात ये कि मंदिर का जो तुम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काउंट करो बिल्कुल सही है, मैंने उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 5-6 साल 10 साल। लेकिन एक एयरपोर्ट अगर बनता है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज तुरंत मिलेगा। पहला अपॉर्चुनिटीज ये कि सैकड़ों लोगों को काम मिलेगा वहां पे, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने समय और एयरपोर्ट बनने के बाद। उसके बाद ये है कि सपोज एयरपोर्ट बना है से अयोध्या में, पहले अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था। अब समझो कोलकाता से किसी को अयोध्या जाना है तो वो क्या करता था, वो पहले सबसे क्लोजेस्ट कोई एयरपोर्ट जाता था, सपोज इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, फिर वहां से उतर के फिर वो जाता था अयोध्या। लेकिन अभी जो होगा, नंबर ऑफ प्लेन्स बढ़ जाएंगे, अब डायरेक्टली अयोध्या तक के लिए एक प्लेन होगा। अब जब नंबर ऑफ प्लेन्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। पैसेंजर्स की मात्रा बढ़ेगी, और अगर पैसेंजर्स आना चाह रहे हैं लेकिन अगर आने के लिए साधन नहीं है तो क्या इकोनॉमी बूस्टअप होगा? नहीं होगा। यहीं पे डिफरेंस होता है डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड। मैंने मैक्रो में बताया था व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड होने से नहीं होता है, इफेक्टिव डिमांड होना पड़ता है। और भी कई पॉइंट्स है, जैसे नया पायलट हायर होगा, नया एयर होस्टेस हायर होगी तुरंत, ठीक है। तो आई थिंक उसके बाद तो फिर नए ऑफर्स भी तो आएंगे, कूपन्स भी आएंगे, ताकि वो जितना मतलब कम प्राइस पे वो लोग जा सके फ्लाइट्स में। yes, so there are opportunities. Second is public expenditure can be effectively used to in reducing regional disparities as well. I discussed this. Regional disparity मतलब SC ST OBC वाला जो पॉइंट मैंने बोला। अच्छा, effect of public expenditure on economic growth. Now this page is very haphazardly written. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इस पॉइंट पे बात आता हूँ मैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। मैं पब्लिक डेट पे जाता हूँ। पब्लिक डेट मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ पब्लिक डेट। डेट मतलब होता है कर्ज। अगर पब्लिक का पैसा कर्जा में लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक डेट। The amount of public expenditure has increased over the years in view of the increasing activities of the government. अगर हम लोग देखें तो बहुत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब पब्लिक के लिए खर्चा काफी हो रहा है। इतना ज्यादा खर्च हो रहा है जितना ज्यादा एक्चुअली पब्लिक का रेवेन्यू भी नहीं है। तो समझो गवर्नमेंट का इनकम है समझो 100 रुपए और गवर्नमेंट को खर्च करना है समझो 150 रुपए।
तो एक्स्ट्रा 50 रुपए कहाँ से आएंगे? वो उधार लेना पड़ेगा, तो हो गया वो पब्लिक डेट। ठीक है, तो it is not possible to meet the large public expenditure through the traditional source of revenue called taxes. Therefore, the government is required to obtain additional revenue through borrowing. तो borrowing and lending का process चलते रहना चाहिए। In modern times, borrowing by the government has become a normal method of government finance, along with other sources of public finance like taxes, fees, etc. Borrowing by the government leads to public debt. The total outstanding loans by the government go by the name of government debt और पब्लिक डेट। जो भी गवर्नमेंट का डेट होता है, उधार होता है, वो पब्लिक डेट कहलाता है। ओके, नाउ जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम शोइंग यू समथिंग। भैया ST/SC से क्वेश्चन है, क्लास के बाद पूछूंगा। पूछो, अभी पूछो ना। अरे नहीं, वो चैप्टर से पूरा अलग है क्वेश्चन। अरे पूछो, क्या दिक्कत है? अरे आप बोल रहे थे ना, वो जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बता रहे थे, तो मैं पूछ रहा था कि जब हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था, जब वेदास लिखा गया था, हिंदुइज्म कभी स्टार्ट नहीं हुआ था। नहीं मतलब जब पुराना पहले का बात कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग का, तब लव मैरिज हम लोग। हिंदुइज्म इस तरह से मत बोला करो कि हिंदुइज्म स्टार्ट हुआ था। हिंदुइज्म कभी स्टार्ट नहीं होता। हिंदुइज्म इज ऑलवेज देयर एंड हिंदुइज्म विल ऑलवेज बी देयर। प्राउड टू बी हिंदू। हाँ एकदम। हाँ, मैं पूछ रहा था कि लव मैरिज पहले प्रेफर किया जाता था या अरेंज मैरिज ही बस होता था? नहीं, पहले तो लड़की के चॉइस से मैरिज होता था ना, स्वयंवर होता था। अच्छा, ओ मतलब पहले लव मैरिज ही होता था? एकदम पहले के टाइम में तुम पैदा होता ना तो तुम्हारा एकदम चांदी रहता। देखो, now I am going to show you a very interesting data. Okay, this thing. आया स्क्रीन, आया सबके पास? हाँ आया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे of 2018-19, total liabilities of the, now you know the meaning of liabilities, total liabilities of the central government at end March 2019 stood at rupees 84.7 lakh crores. Okay, and 90% of which was public debt. Central government general government debt of GDP ratio, which includes the combined debt of center and states, worked out to be 67.4% at the end of March 2017. इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के जो टोटल लायबिलिटीज हैं 2019 के मार्च तक, ठीक है, मतलब पिछले साल तक, वो थे 84.7 लाख करोड़ रुपीस। व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मतलब वो हर चीज जिससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, चाहे वो कोई टूटा हुआ ब्रिज हो गया, टूटा हुआ ट्रैक्टर हो गया, टूटा हुआ रोड रोलर हो गया, कुछ भी जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, दैट इज लायबिलिटी। वो पूरा वर्थ कितने का था? 84.7 लाख करोड़ का। उनमें से 90% यानी कि 84.7 लाख करोड़ का 90% पैसा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेट था। यानी कि अगर मैं 84.7 लाख का अगर 90% करूं तो वो हो जाएगा 76.23 लाख करोड़ रुपीस। 76.23 लाख करोड़ रुपीस का पब्लिक डेट गवर्नमेंट के पास था 2019 को। और अगर जीडीपी के साथ अगर हम कंपेयर करें, जीडीपी के साथ, तो 2017 में, मार्च 2017 में जीडीपी के साथ स्टेट और सेंटर का मिला के 67.4% पब्लिक डेट का पैसा था। यानी कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च करती थी उस समय 2017 में, अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट स्पेंड करती थी कोई चीज में, तो उसमें से 67 रुपीज उधार लिया हुआ रहता था। सिर्फ 33 रुपीज ऐसा होता था जो इंडिया से कलेक्ट करके, पब्लिक मनी इंडियन का कलेक्ट करके स्पेंड होता था। बाकी 67 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज उधार का पैसा स्पेंड होता था। ये 2017 का डेटा है। 2020 में और भी हो सकता है, 2020 का डेटा अगले साल आएगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिया नाउ। अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि इंडिया का है तो दूसरे कंट्री का क्या होगा, दूसरे कंट्री का देखते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि दूसरा कंट्री सब में बहुत अच्छा है,
मैं चाइना का देखता हूँ। न्यूजीलैंड का देखिए ना एक बार। तो चाइना का अगर हम लोग ये देखें डेट, देखो चाइना का इस 41.54%, यानी कि हर 100 रुपए खर्च करने पे चाइना 41 रुपीज वो उधार का पैसा रहता है। तो ये ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिया इस चीज से सफर कर रहा है, पब्लिक डेट से सब लोग सफर करते हैं ना। वेरी तो इंटरेस्टिंग। भैया लेता कहाँ से है, बता उधार रहा लेता कहाँ से? बता रहा हूँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि उधार लेता देता कौन सा कंट्री उधार, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय निखिल। नाउ लेट्स सी यूएस, लेट्स सी यूएस एज ऑफ May 1, 2020 का डेटा इन लोग के पास इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। द फेडरल डेट, फेडरल मतलब गवर्नमेंट, द फेडरल डेट हेल्ड बाय द पब्लिक वाज $19.5 ट्रिलियन and the intra-governmental holdings were $5.9 trillion for a total national debt of $24.95 trillion। यानी कि $24.95 ट्रिलियन का यूएस के पास डेट है। और अगर मैं जीडीपी के हिसाब से बोलूं तो वो तकरीबन जीडीपी का 79.2% है, यानी कि हर 100 रुपए जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है यूएस की, उसमें से 80 रुपए लोन का रहता है, उधार के पैसा, मतलब इंडिया से भी ज्यादा। ओके, नाउ दीज आर एक्चुअली ओ वेरी भाई, इन शॉकिंग डेटा। एक्चुअली तुम लोग को लग रहा होगा कि यूएस इतना बड़ा कंट्री है तो ऐसा उसमें तो कोई उधार होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अभी लेट मी लुक फॉर एनी अदर कंट्री। सो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। I will be looking for Switzerland. Okay. स्विट्जरलैंड में देखो कितना कम पब्लिक डेट है, 256,771 मिलियन यूरोस। अगर देखा जाए तो 2016 में इट वाज 42% ऑफ द जीडीपी। अब स्विट्जरलैंड का कंट्री का साइज भी छोटा है तो उससे भी कंपेयर करो, स्विट्जरलैंड में 42.4% और चाइना में 42.4%, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, so these data are actually very shocking. And now the question is, okay, the last data which I want to show you is of Pakistan's. Okay, Pakistan 99%। देखते हैं। There was a news actually. See this news, ये एक दिन पहले का डेटा है, एक दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये पब्लिश हुआ है। इट शोज दैट yes 31st August का डेट है। पाकिस्तान पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीजेस टू 87.2%, मतलब फॉर एवरी 100 रुपीज 87.2 रुपीज इज फ्रॉम लोन्स। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय निखिल दैट ये सब एक्चुअली देता कौन है लोन। तो देखो ये जो लोन का सिलसिला है ना, ये तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये कंट्री किसी कंट्री से लेके किसी दूसरे कंट्री को देता है। समझो मैंने निखिल से उधार लिया 500 रुपया, निखिल मेरे से मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने आयशा को बोला आयशा 500 रुपया उधार दो, तो आयशा ने मुझे 500 रुपया उधार दिया और मैंने निखिल को चुका दिया। तो मेरा डेट अभी कितना रहा, वापस 500 ही रहा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आयशा ने जो मुझे 500 रुपया दिया है वो खुद ही उधार का पैसा उसके पास था जो उसने अनीशा से लेके रखा था। और निखिल से जो मैंने 500 रुपया लिया था वो निखिल ने किसी और से लेके रखा था, अनीशा से। अनीशा ने जो पैसा दिया वो विनीत से लिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है जी, वर्ल्ड इकोनॉमी में पैसा इस तरह से हेरफेर होता है, मतलब ये उससे लेके उसको देता है, उससे वो लेके उसको देता है, पॉलिटिकल मर्जर करने के लिए, पॉलिटिकल मर्जर के लिए। जैसे ये जो अभी हाल ही में पाकिस्तान को चाइना ने लोन दिया है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से लोन क्लियर करे। So these are very shocking news. So पब्लिक का जो पैसा है वो, मैं जो इस पॉइंट पे था पब्लिक डेट पे जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अभी, तो
सो ये पब्लिक डेट अगर लोग नहीं ले, अब समझो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है हम पब्लिक डेट नहीं लेंगे, तो उसका हालत क्या होगा? वो 100 रुपए जो पहले स्पेंड करता था अब वो सिर्फ 13 रुपए स्पेंड कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना पैसा 13 रुपए ही है, 87 रुपीज तो लोन का है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 13 रुपीज स्पेंड करता है इन प्लेस ऑफ 100 रुपीज, तो इसकी इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि मैंने केन्शियन मॉडल समझाया हुआ तुम लोग को कि एक छोटा सा इकोनॉमी पे अगर बूस्ट पड़ता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है, 5 टाइम 6 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। अब 100 रुपए स्पेंड कर रहे हैं, 5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट विल गिव यू 500। 13 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, 5 टाइम मल्टीप्लायर इफेक्ट विल गिव यू ओनली 65 रुपीज। सो इसीलिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करते रहने के लिए पब्लिक डेट बहुत जरूरी टूल है। ओके अच्छा, अब मैं इसके बाद वाला पेज पढ़ाऊंगा तुम लोग को, नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करो, ठीक है।